सो हमने फेज इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट में म्यू वर्सेस टी कर्व्स देख लिए थे. ओके. देन आज हमें इसको फिनिश करना है. सो प्रेशर डिपेंडेंसी देखनी है. ओके. टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो हमने देख ली थी. एंड देन हमें क्लॉजियस से क्लेपेरॉन की इक्वेशन देखनी है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेशर डिपेंडेंसी, वी हैव टू सी व्हाट सी हाउ मोलर वॉल्यूम इज चेंजिंग. सिंस du is chemical potential and P is the pressure. Okay, and we have to see how pressure change affects these phase transitions. So this equation 3.14, इसमें Vm is the molar volume and du mu by P is the chemical potential upon pressure. So as we know कि molar volume is always positive, this means कि किसी भी given temperature पे chemical potential would vary directly with the pressure. So mu vary directly with the pressure. If pressure increases, mu will increase, or if mu increases, pressure will increase. If this will increase, this will decrease. Okay. So molar volume of gas हमें पता है ज्यादा होता है as compared to liquid. So क्या होगा अगर pressure ज्यादा है तो chemical potential भी gas का ज्यादा होगा. So as a result, on decreasing the pressure on a system, the value of mu for gas would decrease. Since we are decreasing here the value of mu, so the pressure for the mu for the gas will decrease. Okay. Now ये ग्राफ्स दिए हुए हैं म्यू वर्सेस टी के एट अ कांस्टेंट प्रेशर. सो यू विल सी कि जो डॉटेड लाइंस हैं they are indicating that the substance or the phase, that is liquid solid, is at lower pressure. Okay. So solid की dotted line ये dark purple है, liquid की green है, gas की red है. Okay. Now you may note here that at a lower pressure the solid and the liquid curves interact या intersect at lower temperature. Okay. जैसे solid का curve dotted वाला ये है. Okay. Liquid का ये है. So they are intersecting at what? At lower temperature. So this means melting point will decrease. Why? Solid liquid में conversion is melting. So since they are intersecting at the lower temperature, this means melting point will decrease. Now अगर आप liquid gas का curve देखोगे, so they are also intersecting at the lower temperature. That is this point. Gas का ये है और liquid का ये है green. So they are intersecting at this position. This again is what? They are also intersecting at lower temperature and hence the boiling point will decrease. And we know that कि pressure जैसे जैसे decrease होता है boiling point decrease होता है. क्यों? क्योंकि lesser energy is required to convert liquid into vapor. So the effect of pressure on boiling point is much greater than on the melting point. Why? Because the molar volume of gas is much more than that of the liquid. बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि गैस का मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है. इसीलिए गैस का मोलर वॉल्यूम ज्यादा है तो वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा एंड इसीलिए प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा होता है. नाउ सब्लिमेशन एंड ट्रिपल पॉइंट दो ऐसे फिनोमेना हैं जो हमें म्यू वर्सेस टी दैट इज एट अ कांस्टेंट प्रेशर वाले डायग्राम में पढ़ने हैं. Sublimation means direct conversion of solid to the vapor phase. So if you decrease the pressure sufficiently that it may so happen that the pressure versus, that is the mu versus T for solid phase, meets that of the gas at a lower temperature, then the temperature at which it meets the liquid curve, that is this. ठीक है. ये solid की लाइन कौन सी थी आपकी? पर्पल कलर की थी. एंड लिक्विड की वेपर की कौन सी थी? वेपर की आपकी थी दैट इज गैस की रेड. सो पर्पल और रेड इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. ओके. दिस मीन्स वेयर these two will meet, there will be the phenomena of sublimation. This means there will be equilibrium between solid and the vapor phase. Okay. Now the amount of solid converting into the vapor and the vapor amount converting into the solid will be in equilibrium. So there will be equilibrium between the solid and the gas phase. Solid would undergo sublimation at this point. Now there is one concept of triple point. Triple point is the point where solid, liquid and gas
all the three phases coexist. So we have a combination, we may have a combination of temperature, pressure at which solid, liquid, vapor curves will intersect. Okay, and they will be in equilibrium. So solid converting into liquid, liquid converting into gas, and these all will convert into one another at equilibrium. So such a combination of temperature and pressure where all the three phases exist is known as the triple point of a system. And यहाँ पर this point is the triple point. ये पर्पल कलर की सॉलिड की है, गैस की रेड है, एंड लिक्विड की ग्रीन कलर की लाइन है. सो दिस ग्राफ, दिस एंड दिस इज इंडिकेटिंग द ट्रिपल पॉइंट वाला डायग्राम या ग्राफ, एंड दिस इज द डायग्राम फॉर सब्लिमेशन. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट प्रेशर डिपेंडेंसी एक्सप्लेन कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, म्यू ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, म्यू इज केमिकल पोटेंशियल, ये कम तो ये कम. सिंस मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है गैस का, है ना, मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है गैस का, अभी हमने पढ़ा, सो केमिकल पोटेंशियल डायरेक्टली वेरी करता है. दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू म्यू वर्सेस टी. अगर प्रेशर चेंज होता है तो क्या क्या चेंज होगा. नाउ क्लॉशियस इन द क्लेपेरॉन इक्वेशन. सो क्लॉशियस एंड क्लेपेरॉन ने इक्वेशन दी कि टेम्परेचर, सिस्टम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो डिपेंड करता है. क्या टेम्परेचर और प्रेशर आपस में रिलेटेड है? इक्विलिब्रियम, किसी भी प्रोसेस, अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सो आइदर द टेम्परेचर एंड द प्रेशर आर रिलेटेड विद ईच अदर. So for this phenomena to explain, Clausius and the Clapeyron gave an equation that is known as Clausius-Clapeyron equation. तो पहले क्लेपेरॉन ने दी थी, बाद में इसको मॉडिफाई किया ऑन द थर्मोडायनेमिक बेसिस बाय क्लॉशियस, एंड इसलिए इसको क्लॉशियस-क्लेपेरॉन कहा गया. नाउ लेट्स सी द क्लेपेरॉन इक्वेशन. सो व्हाट he said that he take a one component system. One component means maybe NH3 only, है ना, or if more than 2-3 reactants or the products or the molecules are involved, but after subtracting, अगर reaction हो रही है तो after subtracting you will get component as one. अगर reaction नहीं हो रही है तो normally one component. So system आपका क्या है, एक one component system है. आपने दो phases लिए हैं, alpha and the beta, maybe solid, liquid or the liquid gas. So phases are two, but component is one. ठीक है. So in equilibrium, as you know that for two phases to be in equilibrium, the pressure, temperature and the chemical potential of the component in the two phases should be equal. अगर दो phases जैसे solid और liquid equilibrium में है, तो इनके phases they should be equal and the chemical potential should also be equal. As मैंने बताया था, जितने भी component phases के according vary करेंगे, आपका chemical potential same होगा. Okay, so let's consider कि under the constant temperature and the pressure, chemical potential दोनों phases का, एक phase आपका अल्फा एक बीटा है, तो इन दोनों का mu A and mu B same होगा at a constant temperature and the pressure. Now if you change the temperature, you are changing the temperature keeping the pressure constant, or changing the pressure keeping the temperature constant, one of the phases will change. Either the mu A, either the alpha phase or the beta phase will change. If you change either of the variable, that is temperature or the pressure. However, if we approximately change both temperature and pressure, two phases can be kept in equilibrium. That means दोनों phases coexist करेंगे. And इसी चीज को explain किया क्लेपेरॉन ने, and he said that dp by dt, उन्होंने एक relation दिया इस चीज को explain करने के लिए. If you change both temperature and pressure, both the phases will coexist. That is, they will be in equilibrium. The Clapeyron equation essentially provides dp by dt, okay, change in pressure, change in temperature relationship. और ये उनका कोएग्जिस्टेंस कर्व है फेज ए एंड फेज बी का, प्रेशर टेम्परेचर के बेसिस पे. Here the simultaneous variation of pressure and the temperature for one component system gives the coexisting
फेज ए एंड फेज बी दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ टू फेसेस रिमेन सेम अलोंग द कर्व. चाहे यहाँ हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, आपका हर जगह केमिकल पोटेंशियल फेसेस का सेम रहेगा. इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे. Now, if you are changing the pressure, okay, initially pressure was P. If you change the pressure from P to what? PdP, that is a small change. Temperature will also change from T to delta T. Now, the corresponding chemical potential would be mu A, that is mu dA. Mu A change होगा ना, chemical potential भी change होगा if you are changing pressure and the temperature. Mu B also will change. So, this is the change. Therefore, that is PdP and TdT. The equilibrium condition would become what? That is the initial, this is initial, and this is after the change. Okay, du, dub, mu b. So this is after change. Now, equation 3.15 को आपको 3.16 से subtract करना है. So this is 3.15. आपको इसको subtract करना है इससे. So you will get what? This equation. ये वाली इक्वेशन आपको मिलेगी. आपका म्यू क्या कट जाएगा? म्यू ए कट जाएगा आपका, एंड यू विल गेट डी यू ए बराबर से डी यू बी, म्यू बी. नाउ इक्वेशन 3.10, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था व्हाट गिव्स फ्री एनर्जी के टाइम पे. देखते हैं कौन सी इक्वेशन. मोलर वॉल्यूम एंड ये दिस इज व्हाट, जब स्मॉल m है सो वी आर इंडिकेटिंग इट एज मोलर, है ना. सो मैंने आपको बताई थी ना ये इक्वेशन कि जब आप डेल्टा जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, उसको आप नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दोगे. सो नंबर ऑफ मोल्स से जब आप किसी क्वांटिटी को डिवाइड करते हो तो आपका मोलर क्वांटिटी आता है. सो जी जीएम में कन्वर्ट हो जाता था, एस एसएम में, वी वीएम में. सो इसी इक्वेशन को आपको यहाँ यूज करना है. एंड आपको क्या करना है, इक्वेशन 3.10 ये है, उसको आपने लिखा है यहाँ पर. एंड फॉर डी म्यू ए अल्फा अल्फा आ जाएगा हर जगह. फॉर बीटा 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 आ जाएगा हर जगह. एंड देन 3.17 दैट इज इस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आपको यूज करके एक ये इक्वेशन आपकी बनेगी. ठीक है, आपकी इक्वेशन बनी ये 3.17 एंड 3.19 को यूज करके. सो एस एम डी टी प्लस अल्फा के लिए एंड सिमिलरली बीटा के लिए डी यू डी म्यू भी बराबर है. सो इफ दीज टू आर इक्वल, सो यू कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे. नाउ व्हेन यू रीअरेंज दिस, इसको आप इस साइड ले आओ या इसको इस साइड ले आओ, सेम सेम टर्म्स को एक साइड ले आओ. एंड देन व्हाट यू विल डू, आपका दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, सो दिस माइनस मीन्स चेंज. सो दिस इज S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2. डेल्टा का मतलब ये होता है. ओके, सो आपका यहाँ डेल्टा आ गया, यहाँ भी डेल्टा आ गया, क्योंकि वॉल्यूम में भी माइनस हो रहा है. नाउ जस्ट चेंज द व्हाट साइड्स ऑफ इक्वेशन एंड मेक देम डिवाइड. नाउ व्हाट यू विल डू, SM अपॉन VM विल बी इक्वल्स टू DT अपॉन DP, या VM अपॉन SM इक्वल्स टू SM अपॉन, अगर VM करोगे अपॉन VM करते हो, सो व्हाट यू विल गेट DT अपॉन DP upon DT. Okay, and when you interchange this, so you will get DT upon DP. So that this equation, that is pressure temperature का आपस में relationship with respect to entropy and the volume, is known as Clapeyron equation. Okay, and इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. ये मोलर वॉल्यूम के फॉर्म में था mm, अगर आप यूनिट मास के फॉर्म में लिखोगे तो दिस इक्वेशन विल चेंज एंड m आपका हट जाएगा. सो सिग्निफिकेंस क्या है क्लेपेरॉन इक्वेशन की, कि इट गिव्स व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर टेम्परेचर, है ना. एंड देन द रेशियो ऑफ P वर्सेस T गिव्स व्हाट, एंट्रोपी इन द वॉल्यूम. एंड द थर्ड इज this equation can generate plots of equilibrium pressure versus the temperature for different phase transformations like vaporization, fusion and
another things. Okay, now Clausius Clapeyron equation. तो ये Clapeyron equation है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लॉशियस ने क्या बोला। सो क्लॉशियस ने सिंप्लीफाइड किया इसी एक्सप्रेशन को एंड ही एक्सप्रेस्ड द क्लिपेरॉन इक्वेशन फॉर वेपराइजेशन एंड द सब्लिमेशन इक्विलिब्रियम। सो वेपराइजेशन मींस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसने इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, और सब्लिमेशन मतलब सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन को। तो क्या हुआ कि हम एक केस देखते हैं, पहले हम देखते हैं वेपराइजेशन का, दैट इज लिक्विड वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम का। सो लिक्विड वेपर, दिस इज वेपराइजेशन के लिए कंडीशन अकॉर्डिंग टू व्हाट, Clausius. So for equilibrium, what will happen? Change these, here vapor, here vapor. So equation is same, just write for the vapor phase, यहाँ पे आप vapor indicate कर दो. Now you know that entropy is equals to enthalpy upon temperature. This is the formula of entropy. ये formula है entropy का. So we are talking about the vapor phase. So we are indicating here the vapor phase. Okay. Now H is the molar enthalpy, as you know. हमने जब फर्स्ट लॉ कह रही हूँ, फर्स्ट ईयर में भी एंड पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं. सो व्हाट विल हैपन, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 2.6, सब्स्टिट्यूटिंग द इन इक्वेशन 2.6 दिस वैल्यू. सो जब आप डेल्टा एच की वैल्यू इस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी टी, इक्वेशन ये बन जाएगी. नाउ क्लॉशियस ने दो अजम्पशंस की, क्या कि मोलर वैल्यू वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गैसेस का ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है, एंड द वेपर बिहेव एज द आइडियल गैस. ये उसके दो अजम्पशंस थे. नाउ इस अजम्पशंस को दिमाग में रखते हुए उन्होंने क्या लिखा, ही राइट वॉल्यूम ऑफ वेपर फेज दैट इज मोलर वॉल्यूम. दिस इज चेंजिंग. सो चेंज इन व्हाट, वेपर फेज का ज्यादा है मोलर वॉल्यूम, तो ज्यादा में से कम माइनस होता है हमेशा. दिस इज वेपर फेज माइनस द लिक्विड. नाउ you know that ideal gas के अकॉर्डिंग PV equals to nRT. अगर गैस के मोल्स N equals to 1 है तो PV equals to nRT and vapor that is volume equals to RT upon P हो जाएगा. So this is the equation from the, ये equation कहाँ से है, या ये ideal gas से. Now इन equations को 3.28 में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास V की वैल्यू है, V की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो. तो V की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, RT अपॉन P. ठीक है, जब RT अपॉन P हो जाएगा तो T दो बार है तो RT स्क्वायर, सेम चीज चल रही है DP अपॉन DT. नाउ दिस इक्वल्स टू दिस, एंड जब आप इसको रीअरेंज करोगे टेम्परेचर प्रेशर वाले साइड को एक साइड ले आओगे, सो यू विल गेट समवॉट दिस इक्वेशन दैट इज DP अपॉन P इक्वल्स टू DT यहाँ आ जाएगा, DT यहाँ आ जाएगा, RT स्क्वायर यहीं रहेगा. दिस इक्वेशन दैट इज DP, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट, इन मीन्स होता है एंटीलॉग. ओके, सो दिस मीन्स दिस, एंड 3.32 को जब आप रीअरेंज करके एक फाइनल इक्वेशन बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, H अपॉन R कर लो, DT अपॉन T स्क्वायर कर लो. दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लॉशियस क्लेपेरॉन इक्वेशन. क्लॉशियस ने इक्वेशन दी सब्लिमेशन वेप और वेपराइजेशन को कंसीडर करके. कुछ इक्वेशन उन्हें नहीं ली है, just he has modified the equation what Clapeyron has given. So this is the equation, final equation. and आप इसको अगर इंटीग्रेट करते हो, T1 टेम्परेचर है ना, तो T1 से T2 और प्रेशर को P1 से P2, तो आपको क्या मिलेगा, T2 माइनस T1 मिलेगा. सिंस यहाँ पे 1/T है तो वेरी भी ऐसे ही करेगा. सो 1/T2 माइनस 1/T1, एंड दिस P1 से P2 वेरिएशन है, सो फाइनल अपॉन इनिशियल होता है तो P2 अपॉन P1 हो जाएगा जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये इक्वेशन. ठीक है, नाउ ये आपकी माइनस T2 माइनस T1 आ गई. नाउ इसको जब एंटी लॉग हटाओगे तो लॉग आता है तो 2.303 आता है. सो इक्वेशन विल बिकम दिस. ये वाली इक्वेशन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है. This is the integrated form of Clausius-Clapeyron equation used for vaporization of liquid. It shows that vapor pressure of liquid increases exponentially with increase in temperature.
सो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वेपर फेस इंक्रीज होगा, ठीक है। So this is the complete equation and we are over with the phase equilibrium part 1. If you will see the numerical very easy, direct आपकी equation पे आता है. For example, the vapor phase pressure of the water is 3161 at 25 degree, this much as 100 degree. अब आपको कैलकुलेट करना है इंथैल्पी. इंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है वेपराइजेशन की, तो आपको डेल्टा एच पी कैलकुलेट करना है. Now you know this formula, so you have to calculate what? This. ठीक है, वेपराइजेशन वाली. ये सब्लिमेशन के लिए है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब्लिमेशन लिख देना है बस. और अब वेपराइजेशन लिखोगे तो वेपराइजेशन लिखना, फॉर्मूला इज सेम. सो आपने एक इक्वेशन यूज की, आपके पास क्या क्या है, T1 है, T2 है, P1 है, P2 है. सो आपके पास ये चारों चीजें हैं. आपके पास R की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाली यूनिट जब यूज होती है तो 3.14 होती है, 8.314. अगर कोई और इसकी यूनिट चेंज होती है तो अकॉर्डिंगली इसकी R की वैल्यू भी चेंज होती है. बट थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल इन सब में यही वाली ज्यादा वैल्यू यूज होती है, दैट इज जूल पर केल्विन पर मोल, है ना. सो आपके पास आपने क्या रख दिया, टेम्परेचर रख दिया. नाउ इसको कन्वर्ट किया है केल्विन में, तो 273 प्लस कर दोगे, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं. सो एडिंग 273, सो आपका ये हो जाएगा 373. इसमें भी 273 प्लस कर दोगे, सो आपका हो जाएगा 298. व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन यू हैव टू ऐड 273. ठीक है. सो आपका आपका मिल गया T1 T2. नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्योंकि इसको रीअरेंज कर लिया, डोंट गेट कंफ्यूज कि इसको ऐसे कैसे लिख दिया. आप इस पे भी पुट कर सकते हो और बाद में रीअरेंज करके निकाल सकते हो, आपको निकालना तो यही है ना. तो आप वो सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, सब चीज है आपके पास, आपको बस क्या निकालना है, लॉग. तो इस लॉग के लिए आपको लॉग टेबल दी जाएगी, ठीक है, लॉग टेबल दी जाएगी एग्जाम में. तो आपको क्या मिल गई वैल्यू, आपको मिल गई डेल्टा वेपराइजेशन की वैल्यू मिल गई. एंड आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. तो न्यूमेरिकल्स इजी आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड आते हैं. तो ये समझ आया बच्चों तीनों को, सिमरन, सुश्री, अनीशा. यस, यस और नो. यस मैम. यस. सो अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया, देन वी विल स्टार्ट विथ आइदर द फेज इक्विलिब्रियम 2 और द काइनेटिक थ्योरी, क्योंकि 137 का पेपर पहले है तो उसकी 2-3 चीजें बची हुई हैं. तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 137 भी देना है. सो हम दोनों स्टार्ट कर लेंगे, 2 भी स्टार्ट कर लेंगे. और ओके अनिशा, सो काइनेटिक थ्योरी भी एंड व्हाट, फेज इक्विलिब्रियम 2 भी. सो काइनेटिक थ्योरी खत्म हो जाएगा जल्दी, ये सारी छोटे छोटे पार्ट्स हैं. लिक्विड्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है. देन रियल गैसेस का लिक्विफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद आपको सॉलिड 1 सॉलिड 2. ओके. सो रात की क्लास में